सरदार रवि रंजन जी, सत श्री अकाल, हरे कृष्णा, कैसे हैं? वेरी ग्लैड टू हैव यू आफ्टर अ while in Bharat Marg. You got a call, very surprising call. We are going to play it here so that you and me can hear it. And it looks like a threatening call from an unknown, unidentified person. I like you to respond to it. Please let us hear it together. What I understand in the call is you are the reason for the ISI blasting the Gurudwara in Afghanistan. Wow. Did the Indian government contact you also for that? I don't know why you have to blast a Gurudwara. What was your personal interest? Let us go through the call first, okay? ਓਕੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਬਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ ਚ ਰੌਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਵੀਰ। if you want to convince me ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪਲੀਜ਼, ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਹੈ ਕਿਆ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ? ਚਾਰੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਚਾਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਚਾਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਦੇ ਨਾ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਮਾਈ ਬੌਸ, ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਮਾਈ ਬੌਸ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਕਰਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਲਮ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਨਾਟ ਯੂਰ ਯਾਰ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੰਮੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੰਮਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫालतू ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। डोंट कॉल मी अगेन, डोंट कॉल मी अगेन। ये इस कॉल के बारे में बोलिए, इसका मतलब क्या है, क्यों ये कॉल आपको आया? देखिए, ये कोई 30-35 साल का है शायद लड़का, पहले भी कॉल करता है और ये 1-2 बार मेरे ऑफिस भी होके गया। ठीक है, इसका ये कहना है कि हाँ आप झटके आपका जान परिचय वाला है? नहीं, जान परिचय वाला नहीं, कहीं से वीडियो देखा, उससे घूमता फिरता आ गया, आपका नंबर मिल गया, कहीं से घूम घाम के आ गया, वैसे कोई जान परिचय नहीं है। ठीक है, ये और ये बात इंडिविजुअल की नहीं मैं करना चाह रहा, ऐसे तो बहुत सुबह से शाम तक लोग मिलते हैं, कोई मेरे को सिख ऐसे मिलते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इनको ठोक दो, जो अलगवादी हैं इनको ये कर दो वो कर दो। तो मैंने कहा भाई आप अपना काम करो और मुझे अपना करने दो, मेरे को क्या करना है मुझे पता है, किसको ठोकना है किसको नहीं ठोकना। ठीक है, और मैं ठोकने वाला किसी को कौन होता हूँ। मेरा एक माइंडसेट है, मैं हलाल नॉमिक्स के खिलाफ काम कर रहा हूँ जो हमारे ऊपर थोपी गई है। अब आप मेरे ऊपर से मेरे मुंह से चीजें ना निकलवाएं, ठीक है ना। आप इनको ये कर दो, ये अलग बात, बहुत बुरी चीज है। मैं कब कह रहा हूँ अच्छी चीज है, बहुत बुरी चीज है तो आप करो, उसके लिए मैं तो कर रहा हूँ जो मेरे को करना है। इस तरह के लोग मिलते हैं सड़क में, यहाँ वहाँ। इसमें अच्छा कुछ अपने सिख भाई मतलब बड़ा अच्छा कर रहे हो आप, ये अलगवाद नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे भी मिलते हैं जैसे आपने सुना था कि ये तुम एकता वाली बात क्यों करते हो और ये है और तुम फलाना ये वो, तुम बेशरम लोग हो, तुम कुत्ते हो, ये सब चीजें चलती रहती है। हाँ जी हाँ जी, ये कहीं पे भी मार्केट ये बेशरम बोलता है कि आपने गुरुद्वारा के बम ब्लास्ट अफगानिस्तान में जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, उसके लिए आपका षड्यंत्र है, षड्यंत्रधारी है। नहीं, वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि हाँ मैं जो कहता हूँ कि हिंदू सिख वी आर पार्ट एंड पार्सल, हम एक ही हैं, हमारा डीएनए एक ही है, हमारा एक ही है। पूजा पद्धति फर्क हो सकती है, विचारधारा में कुछ फर्क हो सकते हैं, कुछ रिचुअल्स में फर्क हो सकते हैं, बट वी आर वन। ठीक है, रिचुअल्स तो सनातनी का और आर्य समाजी का रिचुअल अलग है, अब वो रिचुअल अलग होना एक अलग चीज है। ठीक है, बट वी आर वन। इनका ये कहना है, जब आप ये कहते हो कि हम एक हैं, हम एक फैमिली हैं, ये कहने से वो मुस्लिम बहुत हर्ट हुआ। ठीक है, या जो लोग और हिंदू लोग जो है वो तो पैगंबर की बेइज्जती करते हैं और अपने को हिंदू बताते हो, तो इस वजह से उन्होंने गुरुद्वारे को टारगेट करके ब्लास्ट कर दिया, बिकॉज आप ये सब बोलते रहते हो। तो इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, आपकी वजह से ये हुआ है जो हुआ। तो उसमें काफी आपने सुना होगा, भैया वो तो हजारों साल से ये करते आ रहे हैं और वो करते रहेंगे, मेरे पैदा होने से पहले भी कर रहे थे, मेरे बाद भी वो करेंगे, वो उनका एक माइंडसेट है, उनका एक कल्चर है, उनके ब्लड में है। तो अब उससे मैंने बोला, मैंने कहा क्या चलो मेरा तो अभी मेरी लाइफ टाइम तो यही 50-60 साल ही है ना, तो उससे पहले क्या सब कुछ ठीक था। और 1 मिनट के लिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं ये कह देता हूँ, सिखों का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान गए, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मान गए, तो उसके बाद क्या सारे गुरुद्वारे अफगानिस्तान में सेफ हो जाएंगे, सारे गुरुद्वारों को रिस्टोर कर देंगे? वो फिर भी टारगेट करेंगे, अब भी टारगेट करेंगे। पाकिस्तान अभी एक एक करके आते हैं, पाकिस्तान पे भी और हर जगह। देखिए, तो ये इस माइंडसेट की बात हो रही है, वो तो करेंगे ही करेंगे। अब्दाली कोई मेरे से पूछ के नहीं आया था, गजनवी कोई मेरे से पूछ के नहीं आया था, ना इन्होंने मेरे से कुछ पूछ के या बता के करा। अब उसको इस तरह से जोड़ना, क्योंकि व्हाट आई जिसका मैं वो करता हूँ, प्रीच करता हूँ कि एक हैं, तो उसकी वजह से ये हुआ है। ये आपका थ्रेटनिंग कॉल है, ये कैसा देख रहे हैं आप? थ्रेटनिंग एग्जैक्टली नहीं कह सकते, या जस्ट ही इज एग्जॉस्टिंग हिज फ्रस्ट्रेशन, इट्स अ वार्निंग दैट आई शुड स्टॉप दिस। ठीक है, अब ये है कि एक आदमी को टारगेट करके मान लीजिए इसके ऊपर हम करें, कोई कार्रवाई करें, कोई पुलिस वो करे और हो भी जाता है,
बट एक इंडिविजुअल से बात नहीं है। बात यह है कि ये जो माइंड सेट ऐसे डेवलप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और उसको कैसे रोका जा सकता है। सो दिस हैज टू बी डायग्नोज्ड एंड देन ऑपरेटेड अपॉन, ना कि हम एक डोज दे दे, बुखार हुआ चलो आज डोज ले लो, इसको बुखार हुआ इसको, तो एपिडेमिक है उसको कैसे रोका जाए, और ये चीज है। इनका सोच ऐसा कैसा आ रहा है? ये तो मुसलमान तो इवन दो दे ब्लास्ट माई गुरुद्वारा दे आर माई भाईचारा, ये कैसा हुआ? ये सोच किधर से आ रहा है? अब ये तो क्या कह सकते हैं कि ये मेरी बेटी को उठा के चले गया, ये मेरी बहन को उठा के चले गया, फिर भी ये भाईचारा है, ये किधर से आ रहा है ये सोच? अब देखिए ये तो इन लोगों को पता होगा क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं। जहां तक बेटी की और बहन की बात है, हमारे में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम गाली कहते हैं, ठीक है ना, बहन की माँ की हम गाली कहते हैं, और पूरी दुनिया में उसको गाली माना जाता है, ठीक है। मगर कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं कि जिसमें वो परंपरा है उनकी, उसको वो गाली लगती ही नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, वो तो उनकी परंपरा है। तो ये उस परंपरा को अगर मानना चाहते हैं तो ये इनकी मर्जी है। बाकी ये सिक्खी का नाम लेके जो कर रहे हैं ये बहुत गलत है। मेरे पूछने का मतलब ये है रवि रंजन जी, जी हर पाकिस्तान में हर दिन सिख लड़कियों को उठा के चला जाना, ये तो बहुत कॉमन चीज है, हम तो देखते ही हैं, राइट? तो फिर भी ये लोग गुस्सा नहीं होते हैं। अब ये तो भाईचारा का बात करते हैं, ये किस्सा है? नहीं ये देखिए ऐसे है कि यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब की या सिख रिचुअल्स की बेइज्जती हुई, ठीक है, तो हाथ काट दिया, बड़ा अच्छा किया, काटना ही चाहिए। तो भैया यही एक बार जाके अफगानिस्तान में भी कर दो, ठीक है ना, ये जाके थोड़े से तालिबानों के भी हाथ काट दो, या जो भी वहां पे तालिबान ये बान वो बान जो बान भी है वो, तो उनके भी काट दो। तो ये सिलेक्टिव बहादुरी ना करो, वहां पे जाके करो, बड़ी अच्छी बात है। आई एम विद यू। अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए होगा तो भैया बताओ मेरे को क्या आपको सपोर्ट चाहिए, वहां जाओ ना, वहां से हम। हाँ, दूसरी चीज मैं जो यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि भाई हम लोग ऐसा कहते हैं हिंदू सिख एक हैं, ये है, इस वजह से सिखों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो जब सिख नहीं थे तब भी अटैक होते थे, आज से 700 साल पहले भी अटैक हुआ, और खाली हिंदुओं पे नहीं हुआ, क्रिश्चियंस पे भी हुआ, पूरे स्पेन को गुलाम बना लिया, स्पेन में मंडियां लगी। तो जहां ये सोच जाती हैं वहां पे मंडियां लगती हैं, और अपने यहाँ भी कोई मुसलमान सेफ नहीं है। आज जो हम देख रहे हैं वहां पे हो रहा है बलूचिस्तान में, सिंध में, तो ये एक तो टेररिज्म है, और हब ऑफ टेररिज्म ये है, 2 सिटीज हैं, रावलपिंडी एंड लाहौर, जो दुनिया की नर्सरी है। तो ये मेरे आपसे जो अभी बात हो रही है, ये एक इस तरह का माइंडसेट एक्सपोर्ट ना खाली पंजाब में हो रहा है, हो सकता है कल हिमाचल में हो जाए, आज नक्सलाइट्स को हो रहा है, कल इसको हो रहा है। जब तक वो नेक्सस नहीं टूटेगा गेट नंबर 4 का, यानी ISI का, जहां से जनरल्स इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी हैं, उनका बंद लिफाफे में इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि ये स्पीच आपको देनी है, ये नहीं देनी, और इतने बज के इतने मिनट तक आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये सारी चीजें प्रोग्राम्ड हैं। तो जब तक और आज वहां की सिविल सोसाइटी खड़ी हुई है इस, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, पंजूकिस्तान, जो वहां का पंजाबी ने डोमिनेट कर रखा है, उससे बलूच और सिंधी जो हैं वो आजाद होने की कगार पे हैं, वो कभी भी हो सकते हैं। हम सहयोग देंगे तो भी होंगे, नहीं देंगे तो भी होंगे, दिस इज इमिनेंट। मगर एक पड़ोसी होने के नाते, एक मानवतावादी होने के नाते, और अपनी थ्रेट को कम करने के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए और ह्यूमैनिटी के, दोनों चीजें यहाँ पे हैं। तो वी मस्ट ब्रेक दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इलीगल, जिसे वो कंट्री कहते हैं पंजूकिस्तान, पाकिस्तान। ये बिल्कुल, मुझे इससे ये मैं दोबारा आई वांट टू गो बैक टू द ऑडियो का, ओके जी। इसका मानसिकता जो है ये बोलता है क्लियरली दैट यू आर द रीजन फॉर द ब्लास्ट इन अफगानिस्तान। जैसा मेरा भाई नहीं है, आप ही इसका जिम्मेदार है, क्राइम लाइस ऑन यू। इसका मानसिकता गुरुद्वारा के अंदर से आता है, किधर से ये प्रचार होता है? देखिए मैं जब गुरुद्वारे ग्रंथी लोग का काम होता है ऐसा प्रचार करना, ये कौन करते हैं?
देखिए ऐसे है, जब मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, आपके साथ भी मैंने कई ग्रंथियों की भेंट करवाई, तो कुछ लोग मेरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अलगवाद के खिलाफ जो जा रहे हो। हालांकि मेरा वो मूल विषय नहीं है, मेरा उसके खिलाफ होना एक अलग चीज है, अलगवाद के खिलाफ होना, देश की एकता। पर मेरा मूल विषय तो हलालोनॉमिक्स है, जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है, उसको हटाना। पर फिर भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और ऐसे भी लोग मिलते हैं कि साहब ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो कुत्ते हो, तुम तो फलाना हो, ये एडजेक्टिव्स मिलते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो पर ये जो नैरेटिव नया तैयार किया जा रहा है, बिकॉज हम भाईचारे की आपस में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इस वजह से वहां पे हमें टारगेट किया जा रहा है। अगर ये ना होता, अगर मैंने ऐसी स्टेटमेंट्स ना दी होती, तो शायद वहां पे शायद क्या, फिर वहां पे होना ही नहीं था। तो अगर मैं ना देता स्टेटमेंट्स, तो क्या नहीं होता, तब वो सारे गुरुद्वारों को वहां पे जाके भेंट चढ़ाते कि बहुत अच्छे लोग हो आप, और आप काफिर हो मगर बने रहो, काफिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो फार यू डोंट से यू आर हिंदूज, बट उन्हें क्रिश्चियन से प्रॉब्लम है, उन्हें यहूदी से प्रॉब्लम है, उन्हें पारसी से प्रॉब्लम है, उन्हें शिया से प्रॉब्लम है, उन्हें हर चीज से प्रॉब्लम है। ठीक है, जो जो उसकी इसी दे आर अगेंस्ट एनीथिंग दे डोंट अंडरस्टैंड। And to go एंड back again, yeah, to go back again to the audio call, जी जी because that is my main motto of asking you the roots जी of it. आपको जी कभी ऐसा हुआ कि आप कोई गुरुद्वारा के अंदर गए, उधर आपको मना किया गया कि इधर अंदर नहीं आ ऐसा नहीं नहीं सकते नहीं हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, लोग जरूर मिल जाते हैं, कुछ अप्रिशिएट करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं। वो खाली गुरुद्वारे में नहीं, वो कहीं भी मिल जाते हैं, रोड रोड पे भी मिल जाते हैं, मार्केट में भी मिल जाते हैं, क्योंकि लोग कुछ पहचानते हैं और कुछ अप्रिशिएट करते हैं। ये तो आप भी निकलते होंगे तो आपको भी लोग पहचानते हैं। सो मगर ये जो नैरेटिव नया आया है कि हम लोगों का एकता का प्रचार करने की वजह से वो बेचारे भड़क के ये ब्लास्ट कर दिया, अदरवाइज वो उनको कुछ, अदरवाइज तो उन्होंने वहां पे रोज, उससे पहले तो वो गुरुद्वारे में जाके मिठाइयां रोज देते थे, रोज उनको पूछते थे भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वहां पे सेवा करते थे। तालिबान अपना ऐसा ही कर रहा था शायद अपना पहले। अपना रवि सिंह जी भी जाके उधर लंगर लगाए करते थे। हाँ अफगानिस्तान नहीं जाते हैं वो। हाँ ठीक है, तो हाँ, तो ये जो बड़े उनके वो हैं, जो बड़े सपोर्ट करते हैं, तो वो ठीक है, मैं वहाँ के अफगानी सिखों की बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ, अभी तक टिके रहे। और अभी जब उन्होंने ग्रंथ साहब निकाले, भीड़ को सुरक्षित निकालना, बड़े खतरे में से, चलती गोलियों में से उन्होंने ये काम करा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और आप उनकी भी तो सुनो कि वो क्या कहते हैं, हमारे साथ वहां पे क्या हुआ। यहाँ पे बैठे बैठे आप एज्यूम कर लेना कि अगर ये नहीं कहते तो वो हो जाता। भाई वो तो कर रहे हैं, आज से थोड़ी ना कर रहे हैं, सैकड़ों साल से कर रहे हैं। और इस तरह के ये ये सिर्फ दूसरे को डीमोरलाइज करना, एक नया नैरेटिव शुरू करना, क्योंकि भारत में एकता है, तो इस वजह से अफगानिस्तान में गुरुद्वारों पे अटैक हो रहे हैं। मतलब अगर गुरुद्वारों पे अटैक बचाना है तो भारत को तोड़ दो, और आप एकता की बात मत करो, तो हम मैं सब सुरक्षित हो गुरुद्वारा के जाएंगे। बात इसलिए किया, ये लड़का ऐसा लगता है कि ये तो कोई खालिस्तानी है, खालिस्तानी मानसिकता हो है, सकता वो राइट? मैंने बोला उसको, आपने सुना इसलिए होगा। मैंने पूछा, क्योंकि इसका विचारधारा ऐसा पूछ के इस जैसा आदमी के वजह से ये हो रहा है। इसका टीचिंग कोई गुरुद्वारा के अंदर से आ सकता है, नहीं तो बाहर से आ सकता है। ये किधर से आता है, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, जहां तक मैं दिल्ली में रहता हूँ, जहां तक दिल्ली के गुरुद्वारों की बात है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब कनाडा में क्या हो रहा है ये मैं नहीं, ठीक है ना, ये मैं वहां का नहीं कह सकता। यहाँ पे ऐसा अगर कुछ है भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल, और मतलब ये थोड़ा बहुत तो हर जगह होगा ही होगा। वो तो हमारे को जो केसधारी नहीं भी हैं, जो जिसे हम मोने भाई कहते हैं, उनमें से भी कई लोग मिल जाएंगे कि ये होना चाहिए, कोई अपना, हर कोई अपना, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऑर्गेनाइज तरीके में वहां से नहीं हो रहा। यस, ये फीडिंग जो है इन लोगों को बाहर से मिलती है, और कुछ ना कुछ पैसा भी जरूर मिलता होगा, ब्रेन वॉशिंग को होती है, और कुछ पैसा भी मिलता होगा। और ये इस हाँ देर इसमें हमें, मैं सबसे सबसे पहले मैं ये सारा ब्लेम अपने ऊपर लेता हूँ, और कुछ आप पे भी फेंकता हूँ कि हम ठीक नैरेटिव्स को प्रेजेंट नहीं कर सके, फैक्ट्स को हम प्रेजेंट नहीं कर सके। अभी अभी मेरी अत्री जी से बात हो रही थी, नीरज अत्री जी से, जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स को आरटीआई लगा के उसका ठीक कराया। क्योंकि हम जब मुगल महान की पढ़ते रहेंगे, तो हमें वो एक पीढ़ी दो पीढ़ी पढ़ने के बाद
क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक और उसके बाद भी अगर मुगल महान पढ़ते रहेंगे तो हमारी नजर में मुगल महान हो ही जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, ये जो हाफ हिस्ट्री है, हाफ कुक स्टोरीज हैं और जो रियल स्टोरीज भी हैं, आधी स्टोरीज बचाई, ये सारी इंटीग्रेटेड चीजें। ये जो कॉल है, इसको वार्निंग कॉल कहें या जो भी कहें, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। ये एक उसका एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि रवि रंजन सिंह है या नहीं है, उससे पहले भी ये हो रहा था, कुछ साल बाद नहीं रहेगा तब भी ये होगा। तो ये ब्लेम फेंकना कि आप बिल्कुल। मेरा आश्चर्य का बात ये है कि इन लोगों को कुछ भी शर्म नहीं आती है। आई एम सॉरी, शर्म नहीं आती है। बेटी बहनों को उठाया जाता है, फिर भी ये भाईचारा निभाल के लंगर लगा के करते हैं उधर जाके। ये कैसा हो सकता है? ये तो मुझसे समझने का बिल्कुल बाहर है। आप अगर समझे सो हमें 1 मिनट में 2 मिनट। देखिए अगर एक्चुअली लंगर जो शब्द है, लंगर तो खाना खिलाना लंगर है, जो सीआरपी वाले जाके उनको भड़काने का लंगर, जैसा शाहीन बाग में हुआ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि लंगर क्या होता है। लंगर तो खाना, जो सीआरपी का ट्रक आता है, जहाँ जवान होते हैं, मिलिट्री का आता है, वो भी जब डालते हैं उसको लंगर कहते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा हुआ गुरु का लंगर, ठीक है, जो गुरुद्वारे में होता है। गुरु का लंगर किसके लिए है? वो उसके लिए या तो वो श्रद्धालु हो, श्रद्धा से गुरुद्वारे में आ रहा है, या वो मजबूर हो। जैसे अगर दुश्मन भी है, वो मजबूर है, उसका टांग कटा हुआ है और उसको खाने की जरूरत है, चाहे वो आपका दुश्मन भी है, तो मानवता ये कहती है कि उसका इलाज भी करो। और उसको आज भी हमारे ह्यूमन राइट्स, चाहे यूएन की ऑर्गेनाइजेशन, गुरु गोविंद सिंह अप्रूव किए थे, हम क्यों यूएन को जाने। हाँ ठीक है ना। तो नहीं, मैं आज के कंटेक्स्ट में तो उसमें यहाँ तक, मगर जिनको आप लंगर खिला रहे हैं, ना तो वो श्रद्धा रखते हैं, ना वो मजबूर है, वो एक धरने पे बैठे हुए हैं, एक सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक लड़ रहे हैं, गलत लड़ रहे हैं, वो तो अलग बात है, बट वो मजबूर नहीं है कम से कम। और वहां पे उनकी अपनी कोठियां वोठियां सब कुछ हैं। आप ऐसे लोगों को लंगर खिला के क्या करेंगे? हाँ, उनको मजबूत कर रहे हैं, तो ये लंगर नहीं है, दिस इज, ये सिक्खी, वो आप अपने दुश्मन को फीड कर रहे हैं। दुश्मन एक युद्ध का दुश्मन है, वो अलग चीज है। ये जो लोग हैं, ये सीएए के खिलाफ स्टैंड किए थे जी, ओके। और जब मैं हरमंदिर साहिब में था, उधर अरदास हुआ कि ये सीएए के लिए अरदास हुआ भी, उनके लिए अच्छा होने के लिए, और सीएए के खिलाफ हुए। अब ये दुम दुमा के भाग के आते हैं अफगानिस्तान से, तब इनको सीएए चाहिए। जब इनका दुम दुमा के इनका बेटी को कोई उठा के लेके गया कश्मीर में, तब इनको लव जिहाद का बात चाहिए। मगर ये कड़े होंगे उनके साथ, इसके ये सबके खिलाफ। ये क्या है? ये इसको सिर्फ मैं, ये काल और चक्र की बात है, इसको सिर्फ मैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बता रहा हूं कि कुछ लोग हमारे में से वो इस चीज को नहीं समझ रहे कि जो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ, तुम्हारा भाई कहां से हो जाएगा? जो अपने भाई का भाई नहीं हुआ, तुम्हारा भाई कहां से हो जाएगा? इस चीज को बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। और जो भाई है, वो भाई को भाई नहीं कह के आप किसी और को भाई कह रहे हो, तो ये गलत बात है। मैं अभी भी किसी उस पर बात हो रही थी कि रूट्स कहाँ से हैं, जो सिख बने वो कहाँ से आए थे? वो क्या जापान से आए थे, मेक्सिको से आए थे, तंजानिया से आए थे? कहाँ, ये हम आए कहाँ से? हमारा ओरिजिन क्या है? हमारा वो क्या है? और अगर इसको माना जाए कि एक अलग फिलॉसफी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुइज्म के अंदर 50 भारत में 50 फिलॉसफीज चल रही हैं। हाँ, बहुत फर्क है, रिचुअल्स अलग होंगे, पर उससे ये मतलब नहीं है कि आप मेरे भाई नहीं रहे या आप मेरे दुश्मन हो गए। बिल्कुल। इसमें तो मैं अगर रिचुअल्स की बात होती है, तो मैं जैसे है, यस आई एम, अगर वो रिचुअल्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज करता है, या यहाँ की एक लार्जर पॉपुलेशन जो है उसको बुली करके रिचुअल चेंज करने की करती है, तो डेफिनेटली मैं उसको अपोज करूंगा। मगर ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, कोई कुछ है नहीं, कोई जहां पर आपके गुरुद्वारे जलाए जा रहे हैं, जो लोग गुरुद्वारे जला रहे हैं, उन वो आपको दुश्मन क्यों नहीं नजर आ रहा? ओके, मेरा लास्ट 2 क्वेश्चन आपके लिए। जी ओके, माय लास्ट बट वन क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू दिस वन। ओके जी। ये रवि सिंह जी का नाम तो आप सुने हुए हैं, बहुत दयालु हैं, वो बहुत लंगर चलाते हैं, राइट? बड़ी अच्छी बात। मेरा ये कभी भी दिल में आता है
कि यह आदमी क्यों अफगानिस्तान जाके वो गुरुद्वारा के पास लंगर चलाते नहीं हैं जहां इतना सिख भाइयों को मारा गया, उधर क्यों नहीं करते हैं? क्यों सिंध में नहीं करते हैं जहां हिंदू सिखों का इतना अत्याचार होता है, उधर क्यों नहीं करते हैं? इनका बास गुस्सा हो जाएंगे इसलिए। अब ये तो वो बता सकते हैं, ये जो सिलेक्टिव ह्यूमैनिटी है, पहली चीज बाय द बाय, दे ही पुट लंगर इन दिल्ली इन फार्मर प्रोटेस्ट, सीएए प्रोटेस्ट सारे जगह में किए। नहीं, सीए प्रोटेस्ट में किया कोई बात नहीं, यहाँ किया कोई बात नहीं, मगर जहां पे सिख मर रहे हैं वहां पे क्यों नहीं किया? यहाँ पे किया, ओके, दैट इज डिबेटेबल, करना ठीक था नहीं ठीक था, मगर वहां पे क्यों नहीं किया? एक चीज ये है। दूसरा, जहां तक ह्यूमन राइट्स की बात है, ह्यूमन राइट इज फॉर राइट ह्यूमंस, ह्यूमन राइट्स इज नॉट फॉर, यू हैव टू बी ह्यूमन फर्स्ट, वो आपको उस ह्यूमन कैटेगरी में आना पड़ेगा। जस्ट हैविंग 2 eyes 2 arms doesn't make you human, you have to be human first. So no human rights for anti-human sects, anti-human individuals, ये हो ही नहीं सकता। और ये जो मैं बात कर रहा था, ये कि इतने सालों से ये हो रहा है, अब उनको एक्सक्यूज चाहिए कि ये तो बेचारे हमारे भाई हैं, मगर आप जैसों ने इनको भड़का दिया तो ये हमारे अगेंस्ट हो नहीं, गए। नहीं तो आप लगते तो ऐसे हैं, मुझे ये मानना पड़ेगा, राइट? वो तो शायद अब भड़काए। और मुझे पता नहीं था, और मुझे पता नहीं था कि मैं इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ। ये तो ऐसे लोगों ने मुझे बता दिया मेरे को, मतलब मैं तो अपने को बहुत ऑर्डिनरी समझ रहा था, शायद मेरी गली में भी मेरा इन्फ्लुएंस नहीं चलता, मगर ये तो इन्होंने इतना बड़ा मुझे बना दिया कि शायद नेक्स्ट अमेरिकन गवर्नमेंट भी मैं ही बनाऊंगा बैठ के। तो चलिए, उनका अपना विचार है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे से, जी। ये है, जब मैं इधर बात करता हूँ लोगों से, स्पेशली द खालिस्तानी गैंग, ओके, क्योंकि हमारा धर्म में ये बोला जाता है, आप राइट हैंड में दिए तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं हो जाए, right? This is what teaching by the gurus also same thing. Don't do propaganda of what you are giving, okay? मगर ये लोग बोलते हैं कि हमने हिंदू धर्म को हमने सेव किए, बहुत सारा लोग सेव किए, और गुरुस का रोल इसमें बहुत गहरी है, उसके लिए हम सब आभारी हैं। मगर ये लोग कुछ नहीं किए, गुरुस ने किए, और उन सारे सिख जो शिष्य हैं वो भी किए अपना, वो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए हम कभी भी आभारी हैं और उसका रेस्पेक्ट करते हैं। मगर ये लोग आके डम डम करते हैं कि हमने हिंदुओं को बनाया, तुमने तुम्हारा बेटी और तुम्हारा बहन को भी तुमने बचाया, वो दूसरी बात है। हमने हिंदू को बचाया, इसके वजह से तुम हिंदू हो, नहीं तो तुम मुल्ला बन जाते हो, ऐसा बात करते हैं लोग। मुझे इतना बहादुरी का बात करते हैं, मुझे ये जानना चाहता हूं, ये क्यों अफगानिस्तान से दुम दुबा के भाग के आ रहे हैं? ये क्यों उधर जाके इतना लोग बाहर हैं, ये बोलते हैं हम इंडियन एयरफोर्स में इतने परसेंटेज हैं, ये हैं वो हैं, ये क्यों लाके उनके खिलाफ मोर्चा खोलते नहीं है? मैं इसमें दो चीजें कहूंगा कि वहां पे जो स्थिति है अफगानिस्तान में, वहां पे 100 फैमिली 200 फैमिली या किसी समय 50,000 फैमिली भी रही होगी। उस सिचुएशन में एक फैमिली के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है, जिसका परिवार वहां पे है, एक सिविलियन नहीं लड़ सकता। ये तो इनकी वजह से मैं उनको नहीं, बाहर अभी कनाडा में बैठ के, जर्मनी में बैठ के, यूरोप में बैठ के टंग मारते हैं। मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। वहां पे जो सिख बैठा हुआ है, किस हालात में वो बैठा हुआ था, कैसे उसने अपनी धर्म को, अपने गुरुद्वारों को बचा के रखा हुआ था अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो उनको हेल्प कर सकते, अगर करना था तो उनको हेल्प करते, वो एक अलग विषय है। दूसरी चीज ये है, मैं बार बार ये कहता हूं कि जो अब्दाली या जो भी गजनी या जो भी रहे और जो भी लूट के जाते, वो भारत की बेटी को उठा के जाते थे। वो हिंदू की बेटी को या ये बात नहीं थी, उनके लिए इट वाज अ वार ट्रॉफी, ठीक है ना। अगर दुश्मन की और आपस में भी, अगर मुसलमान का भी आपस में है, तो उनके उसमें वो वार ट्रॉफी थी, ये उसकी उठा लाया, वो उसकी उठा लाया, ये सब चलता रहता था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अब जो प्रोटेक्ट करना, हमारी संस्कृति ने प्रोटेक्ट करना शुरू करा, सिखों ने भी करा, औरों ने भी करा। इट इज जस्ट लाइक जब हम ये कहते हैं कि भाई हमने हिंदू की बेटी बचाई, बड़ा अच्छा किया, उनको शत शत प्रणाम जिन्होंने बचाया। मगर वो जो बेटियां थीं
सिखिज्म जब बढ़ रहा था तो उन्हीं बेटियों के जो बच्चे थे वो सिख बने आ गए। वो कोई सीरिया से नहीं आए, कोई तंजानिया से नहीं आए, कोई मंगोल से नहीं आए, वो कहाँ से आए, वो यही बच्चे बने। तो यानी जिस बेटी को आपने बचाया था, हिंदू की बेटी को बचाया था, वो आपकी माँ थी। इट इज जस्ट लाइक अ मैन सेइंग टू his nana, maternal grandfather, I saved your daughter. Yes, you saved his daughter, but you saved your mother. So you have to understand कि वो बेटी जो थी, वो जो बच्ची थी, वो कल को उन्हीं से संतानें हुई, वही हुए। तो वो बच्चियां कौन थी, कहाँ की थी? वो भारत की बच्चियां थी, चाहे वो। तो ये कह देना कि ये था, ठीक है बचाया, वो तो ठीक है, आप योद्धा थे, आपने लड़ा, आगे फ्रंट में लड़ा ना। कुछ लोग गुस्से में आकर उसको भी डिनाई कर देते हैं, जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। वो एक हिस्ट्री में ये चैप्टर है, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इन मूर्खों की वजह से हम उस नहीं वो हो ही नहीं इज्जत में सकता। कमी नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, मगर इनका जो नैरेटिव है, तो अपनी माँ को बचा के आप नाना के ऊपर एहसान नहीं करते कि मैंने तेरी बेटी को बचाया। तो ये हमारी एक कॉमन बेटियां थी, कॉमन वो है। और अपनी बेटियों को बचाया हमने, अपने गांव की बेटी को बचाया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो अभी एक उसमें करेक्टर आता है दुल्ला भट्टी वाला, ठीक है, वो मुस्लिम करेक्टर था। उसका अकबर से इस बात पे ही वो बागी हो गया और मारा गया कि इस बात से कि वो जो मुगल सैनिक आते थे वो मुसलमान था दुल्ला। तो जो आते थे वो गांव की बेटियां उठा के ले जाते थे, चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, चाहे वो किसी की बेटी हो। तो ही स्टूड अगेंस्ट दैट। तो अब वो ये कहे कि मैंने हिंदुओं की बेटी को बचाया, मैंने मुसलमान की, उसने गांव की बेटी को बचाया था। तो ये मतलब डिस्पाइट, इसको नहीं मैं कह रहा कि वो उसकी क्या पूजा पद्धति थी, वो नमाज पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, या इस्लाम कैसा है, दैट इज नॉट द पॉइंट। सो पॉइंट इज आपने अपनी बच्चियों को बचाया, और वो अगर या अपनी माओ को बचाया, तो Absolutely. किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करा। Absolutely. जिन्होंने हाँ, बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल। करा उनको और शत-शत हम प्रणाम। गुरुओं को तो कभी भी आभारी हैं, उनका टीचिंग्स के लिए आभारी हैं। बहुत सारा महान लोग हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में अपने शब्द लिखे, उनके लिए आभारी हैं। शायद जैसा आपका काल में बता रहे हैं, ये लोग सच में गुरु ग्रंथ साहब का मतलब पढ़ के समझेंगे, यही अपना आशा है। ओके। और मेरा ये एक लास्ट, आप बड़े आदमी हैं सरदार रवि रंजन जी, आप हाँ, अब तो बड़े हो आपके गए। खिलाफ में ISI बाम कर रहा है गुरुद्वारा को, इसलिए मैं आपके द्वारा मैं ये एक सूचना देना चाहता हूँ लास्ट मिनट। वी एट भारत मार्ग, अगर ये जो अपने सिख भाई बंधु हैं, ये इनका धैर्य इतना आ गया, इफ दे वंस दे बिकम ब्रेव एंड गो एंड बिल्ड अ गुरुद्वारा बैक अगेन इन अफगानिस्तान, we will support it by funding it, crowdfunding it. That's great. Yeah, and That's we great. want them to get the एक मैं braveness यहाँ पे- back जो गुरुस ने दिखाए। यस, एक मैं रिमार्क यहाँ पे छोटा सा और देखना चाहूंगा। ना खाली अफगानिस्तान या पाकिस्तान के गुरुद्वारों की मैं बात कह रहा हूँ, वो तो है ही है, बल्कि जब हम फंडिंग की और इसकी और सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो एज अ सिविल सोसाइटी मेरी सबसे अपील है कि जो हमारे साथ में जो मशीन ऑफ टेररिज्म है, जो नर्सरी ऑफ टेररिज्म है, उसको डिसमेंटल करने के लिए भी हमारे को कुछ करना पड़ेगा। ये तो आज खालिस्तानी खड़ा करा है, कुछ करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ एज अ सिविल सोसाइटी हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब और ये 2 मिनट में, क्योंकि आपके पास भी समय कम है, ये 2-3, इट इज नॉट इवन होल ऑफ पाकिस्तान, ये 2-3 सिटीज हैं पंजाबिस्तान की, यानी पंजाबिस्तान की, जो इसको सपोर्ट करती हैं। रावलपिंडी हो गया और लाहौर हो गया, ये 2-4 सिटीज से दुनिया का टेररिज्म की जड़ ये है। इस्लामाबाद हो गया। और इनको पावर कहाँ से मिलती है? इनकी सारी इकोनॉमी 2 स्टेट्स पे डिपेंड करती है, बलूचिस्तान पे और सिंध पे। तो वो लोग देश सिंध अपना चाह रहे हैं, वो भी मुसलमान हैं वहां पे बलूच में, उनको मारा जा रहा है। और वंस ये अगर ये अलग होता है, तो ऊपर का इनका जो टेरर मैकेनिज्म है वो टूटता है। खाली भारत के लिए नहीं, वो मानवता के लिए बहुत एक अच्छी बात है। तो उसके में भी हमको सोचना चाहिए मानवता के नाते। जी जी, एब्सोल्युटली। मेरा यही बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों के वजह से गुरुज का जो सच्चा टीचिंग है वो लोगों तक पहुंचती है।
आप यू आर ब्रेव मैन एंड यू स्टैंड योर ग्राउंड एंड वांट टू थैंक यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग. हरे कृष्णा.